इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 16। So in this question we are given calculate level of earnings before interest and taxes, which is called EBIT, at which EPS in different point between following financing alternative will occur. तो आपको इन डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। सो दैट EPS इज सेम। तो दो अल्टरनेटिव्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 40 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, 40% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख एंड 12% डिबेंचर 40 लाख। तो दो प्लान्स आपको दिए हैं, उनका हमने इंडिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्या कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 25% एंड वैल्यू शेयर इज ₹10 इन ईच केस। तो पहले देखो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। So we can say plan A and B। तो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हैं। So what is the capital structure? So in first plan we have equity share capital of ₹10 each, जिसे जो 60 lakhs, तो रुपीज हैं आपके लैक्स में। And then we have 40 lakh 12% debentures, टोटल इज 100 lakhs। सेकंड प्लान में आपको दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख एंड देन इट इज 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो दिस इज 20 lakhs एंड 40 lakh इज our 12% debentures। So that your total capital is same in both 100 lakh। So tax rate is given 25%. So we have to calculate in different point, means what is the EBIT so that EPS is the same। तो इसका फार्मूला बनाते हैं। EPS ऑफ प्लान A that is EBIT माइनस करके के इंटरेस्ट 12% कौन 40 लाख 4.8 लाख and make it after tax 0.75 and there is no preference dividend upon number of share are 6 lakh 60/10। सेकेंड प्लान में EBIT आपकी मिसिंग है। इंटरेस्ट 12% ऑन 44.8 मेक इट आफ्टर टैक्स माइनस ऑन प्रेफरेंस शेयर वी हैव टू पे डिविडेंड 14% ऑन 20 2.8 number of shares are 4 lakh। So now we can solve this equation, cross multiply। So 4 into 0.75 3, so it will be 3 EBIT, 3 into 4.8 this is 14.4 is equal to 6 times 0.75 4.5 EBIT, यानी कि 4.5 times 4.8 21.6 minus 2.8 into 6, so this is 16.8।
So this is 4.5 EBIT, this is 3 EBIT, it will go here 1.5 EBIT. This total is 16.8 plus 21.6, so this will become positive, go on this side 38.4 minus 14.4. So now you will get EBIT. So this minus this is 24 upon 1.5. So that is रुपीज़ 16 लाख. तो ये फिगर आपको चल रहे हैं लैक्स में. So that is 16 lakhs of EBIT. EPS will be same under two financial plans. So it was a simple question. So next let us see problem number 17. So in problem 17 we are given a new project under consideration in GIP Limited which requires a capital investment of 45 lakhs. So we are starting a new project which requires a capital of rupees 45 lakhs. So interest on term loan is 12% and corporate tax rate is 25%. To raise the funds, company has two options. तो इसके लिए आपको दो प्लान दिए हैं. So there are two options. So first one is that to issue equity shares at rupees 10 each, or to issue equity shares and raise term loan by maintaining debt equity ratio 2:1. तो फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि आप इक्विटी इशू कर रहे हैं 100% ऑफ रुपीज़ 45 लाख, और एंड सेकंड ऑप्शन है कि आप डेट भी इशू कर रहे हैं, इक्विटी भी. डेट इक्विटी रेशो आपको मेंटेन करनी है 2:1. तो इट मीन्स टोटल इज 2/3 इज डेट, 1/3 इज इक्विटी. सो डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है जिस इज 12% टर्म लोन. इट मीन्स लेट अस शो कैपिटल 12% टर्म लोन. तो फर्स्ट प्लान में आपका नील है, तो इस केस में हो जाएगा 2/3 30 लाख. बैलेंस इज इक्विटी. तो इस प्लान में इक्विटी बन जाएगी 45 लाख एंड हेयर बैलेंस इज 15. So total capital is 45. So then they are saying that tax rate 25%, shares are of ₹10 each, share is of ₹10. So tax rate is given 25%. So we have to calculate point of indifference of the project. Indifference means so the EPS is same. तो अप्लाई करके फार्मूला इक्विटी प्लान में EPS का फार्मूला है EBIT माइनस, इसमें देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट इज मेड आफ्टर टैक्स 0.75, कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4.5 लाख. तो सेकंड प्लान में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा EBIT, तो 30 के ऊपर 12%, 3.6 लाख योर इंटरेस्ट, मेक इट आफ्टर टैक्स 0.75, नो प्रेफरेंस शेयर, नो डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर 15/10, 1.5 लाख. तो 0.75 देखो कैंसिल हो जाएगा, 1.5 से ये क्रॉस हो गया 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो EBIT इज इक्वल टू तो 3 टाइम्स EBIT माइनस 3 टाइम्स 3.6 10.8. सो EBIT विल गो हेयर, दिस इज 2 EBIT is equal to 10.8. So we get at indifferent point EBIT is equal to 10.8 upon 2, 5.4 lakhs. तो अमाउंट्स आपको चल रहे हैं रुपये की लैक्स में. तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम 18. इसमें आपको डाटा दिया है ABC हैज एन एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट 10%, टैक्स रेट 25%. सो डेट इज गिवन 10% डेट, तो टैक्स रेट is 25%. फाइनेंशियल लीवरेज रेशो फॉर द कंपनी जो 0.6. फाइनेंशियल लीवरेज रेशो की डेट इक्विटी रेशो 0.6. तो कैलकुलेट ROE, तो आपको ROE फाइंड आउट करनी है. इफ ROI इज गिवन, सो ROI इज 20%. तो हम एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो फार्मूला को ROE इज इक्वल टू, तो जितना इक्विटी कैपिटल है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी ROI, और उसको हम बनाएंगे आफ्टर टैक्स प्लस जो डेट का अमाउंट आप यूज़ कर रहे हैं अपने कैपिटल में उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगी आपको ROI
माइनस कर दो के डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इतनी आपको नेट रिटर्न मिलेगी डेट के ऊपर। उसको बनाएंगे हम आफ्टर टैक्स और उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी से। ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है। उसमें बुक कर देते हैं ROI है आपकी 20%, टैक्स रेट 25%, 0.75 प्लस ROI 20, टैक्स का रेट है 10%, आफ्टर टैक्स 0.75, टैक्स इक्विटी रेशो आपको दी है 0.6। तो ये जो आपका सेकंड पोर्शन है ये शो करता है एक्स्ट्रा रिटर्न आपको डेट को यूज करने से कितनी मिल रही है इक्विटी के ऊपर। तो जिसे कमिंग 15%, जिसे 10, 7.5 into 0.6, 4.5, so ROE is 19.5%. So next we have problem number 19. So in this case we are given Skyline Software Limited has appointed you as a finance manager. The company wants to implement a project for which 30 lakh is required to be raised from market as a means of financing the project. तो उसमें हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए कैपिटल रुपीज 30 लैक्स। एंड फ्लोइंग फाइनेंशियल प्लान्स एंड ऑप्शंस आर गिवन। तो उसके लिए आपके पास प्लान्स दे रखे हैं। प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी, रुपीज़ दिए हैं लैक्स में और हर प्लान पे दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 देखो, प्लान ए में इक्विटी आप इशू कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं। So assuming tax rate 25% and the face value of all the shares and debentures to be 100 each, calculate in different points and EPS for each of the financial plan. तो हर फाइनेंशियल प्लान का आपने कैलकुलेट करना है इन डिफरेंट पॉइंट एंड EPS। तो लेके सी वन बाय वन। तो पहले लेते हैं प्लान ए। तो किसी फाइनेंशियल प्लान ए, अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो लेटेस्ट राइट टू ऑप्शंस नंबर 1 एंड नंबर 2। रुपीज़ आपके चल रही हैं लैक्स में। तो पहले देखो मेंशन कर रहे हैं हम कैपिटल। तो फर्स्ट प्लान में कैपिटल है आपका इक्विटी 30 लैक्स। इक्विटी शेयर इज ऑफ रुपीज 100 ईच, 30 लैख। सेकंड ऑप्शन में आपको मिलेगा इक्विटी है 15 लैख एंड 12% प्रेफरेंस शेयर नील, 10% डिबेंचर 15, 10% डिबेंचर्स दिस इज आल्सो 15 लैख। सो दैट टोटल इज 30। तो आपको पहले को EPS कैलकुलेट करनी है और फिर उनका इंडिफरेंस पॉइंट। सो आपको वैल्यू दी है शेयर की दैट इज 100 रुपीज। तो लेके सी वकी के EBIT। सो EBIT जो है आपको मेंशन नहीं की। तो इट मीन्स EBIT मीन्स पहले आप इंडिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, उसके बेस पे फिर हम उसकी EPS कैलकुलेट कर देंगे। सो इंडिफरेंट पॉइंट के लिए EPS ऑफ ऑप्शन 1 दैट इज EBIT माइनस इंटरेस्ट के लिए 0 एंड दिस में आफ्टर टैक्स रेट आपको दिया है 25%, देखिए 0.75 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 30 लाख डिवाइडेड बाई 100, 30,000। यानी कि EBIT। तो सेकंड प्लान में आपका इंटरेस्ट है 15 लाख के ऊपर 10%, 1,50,000। जिस मेड आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 15,000। तो आप सोल्व कीजिए, उससे आपकी EBIT आ जाएगी। तो जिसे कैंसिल 15 टाइम्स 2, 75 ही कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो EBIT इज इक्वल टू 2 टाइम्स EBIT माइनस 3 लैक्स। तो इससे आपका इंडिफरेंट पॉइंट आ गया है EBIT दैट इज अवर। सो 2 - 1 1 EBIT इज इक्वल टू 3 लैक्स। अब आप देखिए इस लेवल के ऊपर EPS कितना होगा आपका। EPS कोई भी प्लान आप ले लीजिए, EBIT आ गई है। तो फर्स्ट प्लान में हमारा EPS आ रहा है EBIT की 3 लैक्स। इसमें कोई देखो इंटरेस्ट नहीं है, इसको बनाया आफ्टर टैक्स आपने, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स 30,000। तो जिसे कमिंग 7 रुपीज़ 50 पैसा। सेकंड प्लान में आप लेके आएंगे EPS आ जाएगी आपकी, EBIT है आपका 3 लाख
इसमें आपको इंटरेस्ट पे करने हैं 150। सो मेक दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.75 divided by number of shares 15,000. So this is coming 1,50,000 into 0.75 divided by 15,000. So this is also 7.5. तो ये वेरीफाई भी हो रहा है कि इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर ईपीएस आपकी सेम होती है। अब देखते हैं आपको दिया है को प्लान नंबर बी। नाउ वी हैव प्लान बी। इसमें देखिए क्या दिया आपको, इक्विटी कैपिटल ऑप्शन 1 सेम है 30, सेकंड ऑप्शन में चेंज हो रहा है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर हैं आपके 20 एंड 10। तो सेकंड ऑप्शन में आपको दिया इक्विटी एंड इट इज 12% प्रेफरेंस शेयर। एंड इक्विटी इज गिवन दिस इज 20 लाख, डेट इज 0, प्रेफरेंस शेयर इज 10, so tax rate is 25%, total capital 30. So here also we have to calculate indifferent point between two option and then EPS. Indifferent point का फार्मूला सेम है, EBIT minus there is no interest, make it after tax, divided by number of share 30,000 is equal to EBIT, and here also no interest, make it after tax, but we have to pay preference dividend 12% on 10 lakhs, 1,20,000 divided by number of shares are 20 lakh divided by 100, 20,000। तो इसमें जीरो कैंसिल हो जाएंगी आपकी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 times 0.75 into EBIT 1.5 EBIT, 3 times 0.75 2.25 EBIT, 120 into 3 360. So 2.25 minus 1.5, this is coming 0.75 EBIT is equal to 360। इसको सोल्व करके आपकी EBIT आ जाएगी 360 अपॉन 0.75, दिस इज 480। और आप EPS कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी आप ले लीजिए लेवल EPS के लिए सेम ही आएगी। इक्विटी प्लान लेके हैं, EBIT है आपका 480, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आर 30,000। सो इनको 0.75 डिवाइडेड बाय 30,000, 12 रुपीज़ है EPS। और सेकंड जो आपका प्लान है उसमें ऑप्शन है, उसमें भी 12 रुपीज़ आएगी। फिर एक आपके पास है प्लान नंबर सी। नेक्स्ट लेट अस सी प्लान सी। So in this case also two options are given. Option 1 equity shares are of rupees 30 lakhs. Option 2 equity shares rupees 10 lakhs. 12% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, 10% डिवेंचर 10 lakhs। टैक्स रेट आपका वही 25% है। तो वी हैव टू डिटर्मिन इन डिफरेंस पॉइंट। तो इट मीन्स दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन सेकंड। तो रुपीज़ आपके लैक्स में ही चल रहे हैं। इसमें आप देखिए आपको इक्विटी मेंशन की है, जिसे जो फर्स्ट ऑप्शन में है आपकी 30 lakhs, सेकंड ऑप्शन में इक्विटी है 10 lakhs। तो कैन वी हैव 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 10% टू डिबेंचर्स। सो ईच ऑफ 10 lakh रुपीज and face value of share and debenture is rupees 100. So this is rupees 100. So you can apply formula of indifference point. Indifference point of option 1 EBIT। आप देखेंगे ऑप्शन 1 में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं है, इट मीन माइनस इंटरेस्ट इज 0। उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट इज सेम 25%। सो इट इज 0.75 और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आर 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, 30 होगी। तो सेकंड ऑप्शन में ईबीआई की तो रुपये की लैक्स में चल रहे हैं माइनस, अब इसमें इंटरेस्ट है 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख, एंड इट इज मेड आफ्टर टैक्स minus preference dividend on 10 lakh it is 12%, 1.2 lakhs. Number of shares are 10,000. इसमें बनेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, 10,000। तो किस बनेगी कैंसल्ड 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो किसे 0.75 EBI की is equal to 3 times 0.75, so it will become 2.25 EBIT, and guessing minus 1 lakh into 2.25, so 2.25 lakh, 1.2 into 3, 3.6. Now we can solve for EBIT. So guess minus 0.75, this is 1.5 EBIT. ये इधर क्या कर माइनस हो जाएगा, एंड दिस विल गो ऑन दिस साइड, इट विल बिकम पॉजिटिव 5.85 लाख। ये फिगर लैक्स में चल रहे हैं आपके, सो यू विल गेट टू EBIT। तो किसे 5.85 अपॉन 1.5, तो 3.9 लाख मीन्स 3,90,000। This is your EBIT. And now you can calculate EPS also. So what is the formula of EPS? So at indifferent point, EPS will be same under both options. So let us see for option 1, equity plan में EPS का फार्मूला बनेगा EBIT, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपके हैं 30 होगी। सो जिसे 390 इंटू 0.75, तो डिवाइडेड बाय 30 होगी, तो जिसे कमिंग रुपीज 9.75। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था बट थोड़ा सा लेंथी था। इसमें 3 प्लान थे और हर प्लान में 2 ऑप्शन थे। तो फर्स्ट दे आस्क टू कैलकुलेट इंडिफरेंट पॉइंट एंड देन टू कैलकुलेट EPS आल्सो। तो जिसमें आप देखेंगे एट इंडिफरेंट पॉइंट पर जिसका EPS हाईएस्ट आ रहा है, तो दैट इज अवर बेस्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम 20। So in this question we are given that Business India Limited requires ₹12 lakh to support its increased volume of activities. Presently its EBIT is 2 lakhs. General Manager Finance of the organization has forwarded 3 proposals. तो आपको 12 लाख के फंड्स चाहिए और EBIT है हमारा 2 लाख। 3 प्रपोजल्स हैं आपके पास। सो प्रपोजल 1 to 3, इक्विटी कैपिटल है, डेट है 10 to 6, 6 to 10। इंटरेस्ट स्लैब्स, इंटरेस्ट का जो रेट दिया है वो स्लैब्स के बेस पे दिया है। एप्लीकेबल टू द लोन अप टू 250 10%, 250 to 625 14%, 625 to 10 16%, एंड टैक्स रेट is 25%। Market price of a share of a company is 40, which is expected to come down to 25 a share if market borrowing exceeds 7,50,000। तो मार्केट प्राइस है शेयर का 40 और ये हो जाएगा 25 इफ़ बोरोइंग्स आर मोर देन 7,50,000। इतनी बोरोइंग्स आपकी ज़्यादा है 750 से थर्ड प्रपोजल में। सो फ्रॉम द अब प्रपोजल से यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रपोजल। तो आपको EPS कैलकुलेट करनी है, प्राइस अर्निंग रेशो मेंशन नहीं की है, तो बनाते हैं 3 ऑप्शन हैं आपके पास, उनका बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इनकम स्टेटमेंट। So let us write 3 proposals, 1, 2 and 3. So first we have a capital structure. कैपिटल में आपके पास इक्विटी है और एक डेट है। इक्विटी का अमाउंट दे रखा है आपको 10 लाख से एंड डेट है 2 लाख से। टोटल फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है जिसे ये 12 लाख। सेकंड ऑप्शन में प्रपोजल में 6 लाख इक्विटी, 6 लाख है ये डेट, टोटल है 12। थर्ड प्रपोजल में 2 लाख इक्विटी एंड 10 लाख है ये डेट, टोटल है 12 लाख। तो जिस क्वेश्चन वो जिसमें जो मेन अच्छा पॉइंट है वो है इंटरेस्ट रेट के स्लैब्स आपको दिए हैं।
वो देखेंगे कैसे हम एडजस्ट करेंगे। अब आप मार्केट प्राइस भी दिया है आपको शेयर का MPS। मार्केट प्राइस है आपका 40 रुपये, बट इट विल कम डाउन टू 25 इफ़ बोरोइंग्स आर मोर देन 750। तो थर्ड प्रपोजल में 750 से ज़्यादा बोरोइंग है तो आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 25 हो जाएगा, अदरवाइज इट इज 40 रुपीज़। उसके बेस पर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं EBIT से। EBIT आपको दिया है 2 लाख से, तो इसमें से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का स्लैब है अप टू 250, ये है 10%। तो इट मीन्स जैसे यहाँ पे 2 लाख का है हमारा गैप, बट अप टू 250 तक, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। तो इसमें को हम लेंगे सिर्फ 2 लाख के ऊपर, देखिए 10% 20,000। अब इसमें गैप हो गया आपका 6 लाख, तो इसमें 250 आ जाएगा पहले, 25,000। और इसमें भी 10 लाख है, 25 आ जाएगा। यानी सी अबव 250 से अबव, फ्रॉम अबव 250 टू 625, तो इट मीन्स नेक्स्ट। अब आप देखिए कितना लोन है आपका, इसमें 6 लाख है, 6 माइनस 250 करते हैं तो ये बन गया आपका 350। बट जो टोटल आपका स्लैब बन रहा है जिसे ये 625 माइनस 250, जिसे 375, इट मीन्स बैलेंस रह गया आपका 25। तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे गिवन 14%। तो इट मीन्स अब सेकंड प्लान में 6 लाख का गैप में 250 लीजिएस, 350 लीजिएस, तो 350 का लीजिए अब आप 14%, 49,000। और थर्ड प्लान में आपका ये गैप भी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, जिसे 375 और ये है 250। 375 का इंटरेस्ट आपको पड़ेगा इसमें, जैसे कि 375 इंटू जैसे कि अगर 14%, 52,500। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान में सिर्फ 2 लाख का लोन यूज हो रहा है, उसका इंटरेस्ट है। सेकंड प्लान में 250 पहले ये सारा यूज हो गया है, और बैलेंस आपका 350 यहाँ से यूज हो रहा है, जिसकी लिमिट थी 375। तो 375 का इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। अब देखते हैं 10 माइनस ये टोटल बन गया आपका 625, जो बैलेंस रह गया आपका लोन, बैलेंस लोन आपका रह गया है 375। फिर आपको दिया है लोन अबव 625 टू 10 लाख विच इज 375, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। सो दिस रेट इज 16%। ये आपका जाएगा सिर्फ लास्ट ऑप्शन में। तो यू टेक 375 इंटू 16%, 60,000। तो ये जो स्लैब्स आपको दिए हैं ये अच्छे दिए हैं, इसमें गैट के रिलेटेड। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो बैलेंस यू गेट नाउ PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। So 2 minus 20, 180. So 2 lakh minus this 200 minus 25,000 minus 49, 126,000। यानी कि 2 minus 25, 175 minus 52,500 minus 60,000, इसी 62,500। तो इसमें से आप लेस कीजिए टैक्स। तो टैक्स का रेट देखिए आपको मेंशन किए हैं, जिसे ये अगर 25% at the rate of 25%, so balance you get to PAT। तो किसी के ऊपर PAT, इसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। सो PAT इज 180 माइनस 25%, 135। तो 126 माइनस 25%, 94,500। 62,500 माइनस 25%, 46,875। So can you see what are the number of equity shares of each plan? तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके, इक्विटी को डिवाइड कीजिए मार्केट प्राइस से, दिस विल बी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच प्लान। सो फर्स्ट केस में 10 लाख डिवाइडेड बाई 40, 25,000। 6 लाख डिवाइडेड बाई दिस 15,000। 2 लाख डिवाइडेड बाई 25,
This is 8,000. Now you get your EPS, profit for equity divided by number of share. This will be EPS. So 135,000 divided by 25,000. This is your 5 rupees 40 paisa. Then it is 94,500. So divided by 15,000. 6 rupees 30 paisa. Then 46,875 divided by 8,000. This is 5.86 राउंडेड करके. सो बेस्ट EPS आपकी आ रही है 6.30. इट मीन दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन टू रेज एडिशनल फंड्स. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स. तो फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.